Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are fine. Dear students, today I am going to teach you Social Studies of Grade 5th, lecture number 3. Now open the workbook planner with me. Today we are going to do the week number 2. In week 2 we will do the planner number 2, 3 and 4. Write down the date and day here and unit number 2, polar zones. Now open your textbook. Unit number 2, polar regions. Why it is called the polar regions? Because this region lies near the pole. The polar regions are the areas that surround Earth's geographic picture at north and south poles. The area surrounding the north pole is called Arctic. It includes almost the entire Arctic Ocean and northern ocean of Europe, Asia and North America. At the opposite end of the world from the Arctic is Antarctica. The area surrounding the South Pole is called the Antarctica. It includes the continent of Antarctica and few parts of the Southern Ocean. Together we call the Arctic and Antarctica the polar regions. जोग्राफियाई इलाके में नॉर्थ एंड साउथ पोल के गिर्द जो इलाके होते हैं उसे क्या कहते हैं? पोलर रीजन कहते हैं. वो इलाके जो नॉर्थ पोल के गिर्द हैं उसे कहते हैं आर्कटिक कहते हैं. और वो इसमें तकरीबन आर्कटिक ओशन और शुमाली इलाकों में से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका शामिल हैं. आर्कटिक के मुखालिफ सिमत में अंटार्कटिका वाक़या है. जो इलाके साउथ पोल के गिर्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं. इसमें बरआज़म अंटार्कटिका और कुछ हिस्सा साउदर्न ओशन का शामिल है. अगरचे इन दोनों रीजन्स को क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स कहते हैं. Look here, this is the North Pole and this is the South Pole. The area surrounding the North Pole is known as the Arctic and the area surrounding the South Pole is known as the Antarctic. Below the North Pole, there is Arctic Circle that lies at a 66 degree of north. Below the Arctic Circle, there is Tropic of Cancer that lies at the 23rd and half degree of north. And below the equator, there is Tropic of Capricorn that lies at the 23rd and half degree of south. And below the Tropic of Capricorn, there is Antarctic Circle that lies at the 66 degree of south. The polar regions are covered by snow and ice almost for whole year. The polar regions are the world's coldest regions. Due to the extreme climate, these areas could not develop as much as the rest of the world. सारा साल पोलर रीजन्स बर्फ से ढका रहता है. ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है. बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आबो हवा होने की वजह से ये इलाका दुनिया के दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा तरक्की ना कर सका. Within the Arctic and Antarctic circles, the sun remains below the horizon in mid-winter. It remains dark all day and night. In midsummer, although it is extremely cold, the sun remains above the horizon all the time. This is why these regions are called the land of midnight sun. कुछ एरियाज ऐसे हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक में 6 मंथ क्या रहता है? दिन रहता है और 6 मंथ रात रहती है. जब सूरज जैसे हमें पता है कि जो सयारा हमारा ज़मीन है वो सूरज के गिर्द मूव करता है. और जब सूरज का जब ज़मीन का जो नॉर्थ पोल है सूरज के सामने आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? दिन होता है. और ये दिन कितने तक रहता है? 6 महीने तक वहाँ पे रहता है. और जब नॉर्थ पोल का यही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है तो वहाँ पे रात हो जाती है. और जो रात भी उस एरिया में 6 महीने तक रहती है. और ऐसा ही अंटार्कटिक सर्कल में भी होता है. इसीलिए इस जमीन को, इस रीजन को क्या कहते हैं? इस पोलर रीजन को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन. Antarctica is known as frozen continent. It is covered with a thick layer of ice. It contains about 90% of the world's ice and 70% of the world's fresh water. This area has extreme temperature which is as low as -87 degrees Celsius. अंटार्कटिका को जमा हुआ बरआज़म भी कहते हैं. वो हमेशा बर्फ की सख्त तह के साथ ढका रहता है. इसमें तकरीबन 90% दुनिया की बर्फ पाई जाती है और दुनिया का 70% ताज़ा पानी यहाँ होता है. इसका दर्जा हरारत इंतहाई सर्द होता है जो क्या है? -87 डिग्री सेल्सियस. Antarctica has no native humans or largely earthly mammals, but it does have a varied marine life ranging from microscopic plankton, small organism to the largest whales. It also has about 100 species of fish. Land life which is present there includes bacteria, lichens, mosses, 2 kinds of flowering plants in the ice-free areas, penguins and some flying birds. इस इलाके में ना ही तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर, लेकिन पानी में रहने वाले कई किस्मों के छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं. वहाँ तकरीबन 100 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं. ज़मीनी ज़िंदगी जो वहाँ मौजूद, जहाँ पे जो जानदार जो रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, लाइकन्स, मोजिस और 2 किस्म के फलदार पौधे हैं. और पेंगुइन्स और कुछ उड़ने वाले परिंदे इस इलाके में रहते हैं.
Antarctica is the last continent to be discovered. It remained hidden behind fog, storm, and sea ice until it was first sighted in the early 19th century by a Norwegian called Roald Amundsen because of the extreme cold and the lack of the native people, forest, land, animals, and natural resources. This continent remained largely neglected for decades even after its discovery. अंटार्कटिका जो ये बरआज़म सबसे आखिर में दरियाफ्त होने वाला बरआज़म है, ये धुंध, तूफान और समुद्री बर्फ के पीछे छुपा रहा, जिसकी वजह से इतना नजर छुपा रहने की वजह से दरियाफ्त ना हो सका। इसे सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में रोल्ड अमंडसन ने देखा था। इसे दरियाफ्त करने के बाद भी ज्यादा सर्दी, मकामी लोगों के ना होने की वजह से, जंगलात और कुदरती वसाइल की कम ना होने की वजह से ये बरआज़म नजरअंदाज ही रहा। Scientific expedition. What is scientific expedition? A journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially for research. वो सफर जिसमें ढेर सारे लोग मिलकर एक किसी खास मकसद के लिए को सर्च करने के लिए काम करते हैं, उसे कहते हैं scientific expeditions. Had explored only fragments of its coast by the end of the 19th century, while the center of the continent is remained unknown. Explorers first reached the South Pole in 1911, and the first permanent settlement was established in the early 1940s. From that time, the speed of exploring the continent accelerated rapidly. Scientists continue to conduct research in Antarctica. In the recent years, the increasing number of the tourists have visited Antarctica to appreciate the region's majestic scenery and wildlife. साइंसी मुहम्मद ने 19वीं सेंचुरी के खत्म होने तक इसका कुछ समुद्री हिस्सा दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अननाउन ही रहा। 1911 में इसका कुछ जुनूबी हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया था और वहां पे कुछ लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया था। 1940 में वहां पे एक मुस्तकिल रहने वाले लोगों ने कुछ मुस्तकिल सेटलमेंट्स भी कायम कर ली थी। उस वक्त इनको उस अरसे में इस एरिया को इजाद करने की कोशिश काफी तेजी से जारी रही। साइंसदानों ने अंटार्कटिका में इस रिसर्च को जारी रखा। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तादाद में सियाहों ने यहाँ का सफर किया, इस इलाके की जंगली जिंदगी और इसकी खूबसूरती की तारीफ भी की। Various countries have set up research stations in Antarctica where scientists record the climatic condition and they try to find more about this mysterious continent. कई ममालिक ने वहाँ रिसर्च करने के लिए वहाँ पर स्टेशन बनाए हैं जहाँ पर साइंसदान अपनी वहाँ की आबो हवा को रिकॉर्ड कर सकें और उस बरआज़म की कहानी के बारे में मजीद जान सकें। The Arctic. The Arctic is a very cold place. Is the most northern part of the world. It begins at the North Pole and ends at the Arctic Circle, an imaginary line on map. The Arctic includes the Arctic Ocean, parts of the Canada, Greenland, Iceland, Russia, and United States, Alaska, Sweden, Norway, and Finland. The name Arctic comes from the Greek word Arctus, which means bear. आर्कटिक दुनिया के शिमाली हिस्से का बहुत सर्द इलाका है। यह नॉर्थ पोल से शुरू होता है और आर्कटिक सर्कल पर आकर खत्म हो जाता है। इसमें आर्कटिक ओशन का कुछ हिस्सा कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड शामिल है। ये लफ्ज यूनानी जबान से आया है, आर्कटस से आया है, जिसका मतलब क्या है? बियर मीन्स बर्दाश्त करना। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, हाउएवर इन स्प्रिंग द आइस melts the frozen coastal plains. Temperature in the Arctic region ranges from 10 degrees to 40 degrees Celsius. The first explorer in this region in 325 BC was a Greek named Pythias. 700 years later, some Europeans went as far as Greenland and settled there. Today, only the southern part of the Greenland is inhabited. इस इलाके की आबो हवा भी सारा साल सर्द रहती है। 325 बीसी में यूनानी पैथियाज ने इस इलाके को दरियाफ्त किया था। 700 साल बाद कुछ यूरोपियंस वहां गए और वहीं रहने लगे। अब सिर्फ जनूबी हिस्सा ऐसा है जहां कोई नहीं रहता, बाकी में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े लोग रहने शुरू हो गए हैं। Robert Edwin Peary reached the North Pole in 1909. The people of Arctic region are called Inuit. There are no trees, so Inuit build their houses out of blocks of snow. These houses are called igloos. रॉबर्ट एडविन ने 1909 में नॉर्थ पोल में पहुंचा था। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहते हैं इन्यूट कहते हैं। ये लोग वहाँ पे कोई दरख्त नहीं होते, इसलिए ये बर्फ के जो ब्लॉक्स बना के अपना घर बनाते हैं। उन घरों को क्या कहते हैं? इग्लूज कहते हैं। Global warming and climate changes have the biggest impact on the polar regions. The increasing temperature causes more and more ice to melt. In 1959, the Antarctic Treaty was signed, which prevents Antarctica from being commercially exploited. Sadly, protecting the Arctic is a very difficult case as mining for oil and minerals, fishing and hunting take place in many areas. ग्लोबल वार्मिंग और आबोहवा की तब्दीली की वजह से पोलर रीजन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है हुआ है। दर्जा हरारत की वजह से बर्फ ज्यादा से ज्यादा पिघलने लगी है। 1959 में अंटार्कटिका में एक मुआहदा तय पाया गया था उसे बचाने के लिए, ताकि कोई इस
इससे नुकसान न, अपने मफाद के लिए इसको इस्तेमाल ना करे। लेकिन अफसोस के साथ आर्कटिक रीजन को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर तेल मादनियात के लिए कई कानें की जाती हैं और माहीगीरी और शिकार भी किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलर रीजन्स। नाउ ओपन द वर्कबुक, पेज नंबर 6. Write down the date and day here first. Polar regions. Now part A. Choose the correct answer. Which of the following is not the part of Arctic region? इनमें से कौन सा आर्कटिक रीजन का हिस्सा नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, इजिप्ट. Egypt is the correct answer. Option C. Due to dash, polar regions could not develop as much as rest of the world. किसकी वजह से पोलर रीजन दूसरी दुनिया की निस्बत अभी तक तरक्की नहीं कर सका? एक्सट्रीम क्लाइमेट, हायर एल्टीट्यूड, स्नोफॉल. किसकी वजह से? बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से. एक्सट्रीम क्लाइमेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड लाइफ ऑफ अंटार्कटिका? इनमें से कौन सी ऐसा है जो अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता? केमल, बैक्टीरिया या लाइकन्स. सो केमल इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ पार्ट बी. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन. द एरिया सराउंडिंग द साउथ पोल इज कॉल्ड अंटार्कटिका. जो एरिया साउथ पोल के गिर्द होता है उसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहा जाता है. टिक. अंटार्कटिका इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू बी डिस्कवर्ड. ये पहला कॉन्टिनेंट है जिसको डिस्कवर किया गया था? नहीं. फॉल्स. क्रॉस. द आर्कटिक सर्कल इज ए इमेजिनरी लाइन ऑन मैप. आर्कटिक सर्कल जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है मैप पर. टिक. टुडे ओनली द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज इनहेबिटेड. आज अब सिर्फ जो जनूबी हिस्से का जो ग्रीनलैंड है वो सिर्फ इनहेबिटेड है. यस. टिक. In 1861, the Antarctic Treaty was signed, which prevents Antarctic from being commercially exploited. 1861 में एक ट्रीटी साइन की गई थी ताकि उसको बचाया जा सके. नो. क्रॉस. 1859 में की गई थी. Fill in the blanks with appropriate words. The area surrounding the North Pole is called the dash. जो नॉर्थ पोल के गिर्द जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक. Antarctic contains about dash of the world's ice and dash of the world's fresh water. अंटार्कटिक में कितने परसेंट आइस और कितने परसेंट पानी है? 90% आइस एंड 70% वाटर. द नेम आर्कटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्कटस विच मीन्स डैश. आर्कटिक का जो लफ्ज है वो यूनानी जुबान से आया है आर्कटस, जिसका मतलब क्या है? बियर. टेम्परेचर इन द आर्कटिक रीजन रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश. उसका टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन आर कॉल्ड डैश. जो पीपल है वहाँ के रहने आर्कटिक में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इन्यूट. ना मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 7. Give short answers of part D. What are the two polar regions called? जो दो polar regions उन्हें क्या कहते हैं? The northern polar region is called Arctic. जो नॉर्थ में है उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक कहा जाता है. And the southern is called the Antarctica. और जो साउथ में जो पोल में जो इलाके होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहा जाता है. What are the polar regions called? The land. Why are the polar regions called the land of midnight sun? उसे land of midnight sun क्यों कहा जाता है? वो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूरज उसके सामने होता है, गर्मियों में सूरज गुरूब नहीं होता और सर्दियों में सूरज निकलता नहीं, क्योंकि 6 महीने वहां पे क्या होती है? सर्दी, और 6 महीने वहां पे गर्मी, और 6 महीने दिन और 6 महीने ही रात. बिकॉज इन समर द सन नेवर सेट्स वाइल द नॉर्थ पोल इज इन कॉन्स्टेंट डार्कनेस. द साउथ पोल इज इन द कॉन्स्टेंट सनलाइट. जब नॉर्थ पोल पे दिन होता है तो साउथ पोल पे रात होती है, और जब साउथ पोल पे रात हो तो नॉर्थ पोल पे दिन. Now understand the questions and answer accordingly. Draw a line to match the body parts of the polar bear with its function and learn how polar bears have adapted to their environment. यहाँ पे पोलर बियर के बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं. व्हाइट फर. इसकी जो व्हाइट फर, इसके जो फर किसे कहते हैं? खाल, सफेद खाल. पोलर बियर पे जो सफेद खाल होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है वो अपने आप को उसको बचाने के लिए होती है. ठीक है. लाइक फॉर कैमोफ्लेज एंड वार्मथ बॉडी. उसके बॉडी को गर्म रखने के लिए और उसको बचाने के लिए, क्योंकि उनको जाहिर है उनको वहां पे वो जब स्नो के अंदर जब वो रहते हैं तो बर्फ में और उनमें कोई डिफरेंस इतना क्लियर नहीं होता. सो व्हाइट फर इज यूज्ड. इट्स फंक्शन इज टू सेव द बियर फॉर कैमोफ्लेज एंड वार्मथ बॉडी. Small ear function. Its function is it is used for the insulating the body. ये बॉडी को गर्म रखने में और इसमें जो साउंड्स वगैरह होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं. Now large feet is used for grip and traction on ice. लार्ज फीट की वजह से वो बर्फ पर अपने आप को खड़ा रख सकता है, उस पर अपने आप को चला सकता है. शॉर्प क्लॉज प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. इसकी वजह से जो पानी है वो उसके अंदर नहीं जाता. फैट लेयर. इट इज यूज फॉर स्विमिंग थ्रू आइसी वाटर. ये उसमें जब वो तैरता है जो उसकी जो फैट लेयर है उसको उस पे तैरने में मदद देती है.
Suppose you work for a zoo in a temperate region and you got a chameleon from tropical Africa. Take the correct type of environment you will make for chameleon in temperate region. अगर आप एक ट्रॉपिकल रीजन में हैं और आपको एक अफ्रीका में रहने वाले टेम्परेट रीजन में और आपको ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले एक गिरगिट मिलता है, तो आप उसको कौन से क्लाइमेट में रखेंगे? वैसे चमेलियन जो हैं वो रेन फॉरेस्ट और ट्रीज और बुशेस में रहते हैं. सो कूल इंक्लोयर विद वाटर, नो. अ वार्म ह्यूमिड इंक्लोयर्स विद अबंडेंट ग्रीन प्लांट्स. बिकॉज जो चमेलियन गिरगिट, ये जो गिरगिट है ये कहाँ रहता है? दरख्तों पे या झाड़ियों में रहता है, इसलिए इसके लिए वार्म ह्यूमिड इंक्लोयर विद अबंडेंट ग्रीन प्लांट्स ये टेम्परेचर जो है इसके लिए बेस्ट है. सो वाइट फर इज ऑप्शन 3, स्मॉल ईयर ऑप्शन 2, लार्ज ईयर ऑप्शन 5, short claws option 4, fat layer option 5, and here the correct option is option B. Dear students, write down the word neat and clean and then learn it. Stay home, stay blessed. Allah Hafiz.